Hello everyone, welcome to Pratham Test Prep. My name is Ashish Bhargav and I welcome each and everyone here in the family of Pratham Test Prep. And here is the official channel of Pratham Test Prep, and make sure guys, if you are new in this channel, please subscribe our channel and do not forget to press the bell icon. और एक और चीज़, like before we start, let me know if my voice is audible, am I visible to each and everyone? Am I audible? Am I visible? Okay. So here we have with another episode of Daily News Analysis. As we know that why the newspaper is important. क्यों important है? There are many aspects of the newspaper is important because it tells you about that what things is happening, and this is very important to understand that why the newspaper is important, because majorly we discuss about the Hindu and Indian Express. So the two prominent newspaper will tells you about the what is happening around us, about the, like if you talk about Indian diaspora, if you talk about international relation, if you talk about the economy, if you talk about the national news, you talk about person in news, summits and conference, miscellaneous, economy-based question, sports-based questions, etc. So apart from that, we also discuss about any verdict, any Supreme Court verdict, any amendments, any bills which is in the parliament. This is also we discuss in newspaper analysis. Here is the quote that nobody can go back and start a new beginning, but anyone can start today, make a new ending. और यहाँ पे questions of the day. So my friend, we'll ask you the 5 questions after this analysis. Stay tuned, because whatever the questions I have selected, these are they directly taken from the Hindu Indian Express. So my suggestion to each and everyone, whatever the information you have collected or gathered, make sure try to implement in your knowledge to solving the MCQ, because at the end of your day you will be appear in such kind of exams where MCQ will be asked. So you have to develop such kind of temperament which is very very important to solving the multiple choice questions. And क्विक टिप्स, और आज क्विक टिप्स में आपको खाने होंगे टमाटर. कह रहे हो क्या, आप क्या बात कर रहे हो, कौन से टमाटर खाने होंगे? अच्छी नेमोनिक्स के मेथड से बताऊंगा कि यूएनएससी के परमानेंट मेंबर्स को लर्न करने के लिए क्या टेक्निक्स हैं, कब भी नहीं भूलोगे. दैट्स माय प्रॉमिस. स्टे ट्यून, विल मीट एट द एंड ऑफ द सेशन. चलो जी, पहला है यहाँ पे पंचायत के बारे में, एम्पावरिंग पंचायत्स. सबसे पहले पंचायत जो है 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, वेयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश द पंचायत. पंचायत में ग्राम सभा होती है, ग्राम पंचायत होती है, एंड 3 टियर पंचायत सिस्टम को एस्टैब्लिश किया गया. उसमें आया जिला परिषद भी है उसमें. सो इसमें जो लोकल बॉडीज है दैट नीड मोर प्रिडिक्टेबल रेवेन्यू फ्लोस. So a new study of the fiscal position of Panchayati Raj Institution (PRI) by the Reserve Bank of India. तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है उसको रिलीज किया है RBI ने, that should enrich the policy debate. Any comprehensive study of India public finance must include all 3 levels of government. और वो 3 levels of government क्या है? पहला, यूनियन गवर्नमेंट की बात हो रही है, यहाँ पे यूनियन की बात हो रही है, स्टेट्स की बात हो रही है, और लोकल बॉडीज़ की बात हो रही है. 3 बॉडी जो है होनी चाहिए. सो RBI एक और रिपोर्ट पब्लिश करती है, स्टेट ऑफ म्यूनिसिपल फाइनेंस इन नवंबर 2022. सो आप एक चीज़ ध्यान रखें, जो स्टेट ऑफ, कई बार आपके एग्जाम में पूछेंगे ये, स्टेट ऑफ म्यूनिसिपल फाइनेंस जो है, ये रिपोर्ट पब्लिश कौन करता है? नॉट ए स्टेट गवर्नमेंट, इज द RBI. So these reports of local finance, local body financer that fill an important gap in general understandings of governance and underscore the need for more decentralization of fiscal power. Decentralization का मतलब क्या है? Decentralization का मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर. मतलब पूरी पावर जो है आपकी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं होंगी, ये स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर्स होंगी. उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी मेंशन की हुई है, राइट. So according to the latest
अवेलेबल नंबर्स जो दिसंबर 2022 के अकॉर्डिंग है, इंडिया में कितने ग्राम पंचायत हैं। देखो ग्राम पंचायत क्या होता है, जो गांव होता है उसमें पंचायत होती है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग 2,55,623 ये हमारे ग्राम पंचायत हैं। सो जिसमें कि मंडल पंचायत कितने हैं, 6,707 जो है मंडल पंचायत हैं, और 665 जो हमारे कंट्री में ज़िला परिषद हैं। देखो गांव की इकॉनमी को समझना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि गांव की इकॉनमी अगर आपकी ख़राब होती है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे ब्लॉक की इकॉनमी के ऊपर होता है। एंड ब्लॉक की इकॉनमी अगर ख़राब होगी तो उसका इम्पैक्ट आपके डिस्ट्रिक्ट की इकॉनमी के ऊपर होगा। डिस्ट्रिक्ट की इकॉनमी का मतलब है स्टेट की इकॉनमी, और स्टेट की इकॉनमी मतलब हमारे भारत देश की इकॉनमी। सो ये चीज़ें जानने क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब जो है बजट पब्लिश होने वाला है, तो इसीलिए आपके माइंड में ये चीज़ें होनी चाहिए कि गवर्नमेंट जो है यहाँ पे हमारे इंडिया में कितने ग्राम पंचायत हैं, कितना ज़िला परिषद है, ये पंचायती राज सिस्टम कैसे काम करती है। सो मैंने आपको जस्ट डेटा दिया अभी कि 2,55,623 ग्राम पंचायत हैं, जिसमें कि 6,707 जो है मंडल पंचायत हैं और 665 ज़िला परिषद हैं। सो हाउएवर द फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स हैव नॉट अलाउड PRI, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, to realize their potential, and these institutions have very limited fiscal powers and are almost fully dependent on the upper level of government for support. So as the RBI study shows, the average revenue per panchayat 2023 और 2024 में only कितना है, 21 लाख रुपीज़ है। So for all sources, जिसमें कि आपका टैक्स भी है, जिसमें आपको टैक्स के साथ साथ वो ग्रांट्स भी देते हैं, and others चीज़ें भी उसमें ऐड होती है। सो देयर ओन रेवेन्यू फ्रॉम लोकल टैक्सेस वो फी वॉज जस्ट 1.1%, ओनली 1.1% है ऑफ द टोटल ड्यूरिंग द स्टडी पीरियड। सो फर्दर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ पंचायत इज लोअर देन 0.6% ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ ऑल स्टेट। बाद में यहाँ पे फाइनेंस कमीशन आती है। माय फ्रेंड, फाइनेंस कमीशन हमारे कंट्री की क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सो हेड कौन है अभी फाइनेंस कमीशन के, कमेंट सेक्शन में कोई बताओ। 15th फाइनेंस कमीशन जो है फॉर एग्जांपल रिकमेंडेड अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ 2.4 ट्रिलियन फॉर द पीरियड अंडर इट्स रिव्यू। सो ऑब्वियस सी बात है, हमें पंचायत को आर्टिकल 343 के अकॉर्डिंग, देखो इसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को समझो। 15th फाइनेंस कमीशन जो थी उसने रिकमेंड किया था फिक्स्ड अमाउंट 2.4 ट्रिलियन फॉर द पीरियड अंडर इट्स रिव्यू। सो व्हाट सीम्स टू हैव affected the performance of local bodies the most is reluctance of state government in providing financial support. While we talk about the Article 243 Clause 1, which says that the Constitution requires the establishment of a state finance commission for sharing revenue between the state government and panchayats, right? And this estimates के according most states are lagging on this account and the allocations has also been considerably low. So therefore, the thing stands where there is a need to build administrative capacity at the grassroots level. कुछ mechanism government को बनानी होगी that needs to be developed to give local bodies a predictable and meaningful flow of revenue, and this will help them to plan and execute programs more effectively. राइट चलो जी, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को आपको याद रखना इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 243 क्लॉज 1 में मेंशन है। उसके बाद आरबीआई ने रिलीज़ की है स्टेट ऑफ म्युनिसिपल फाइनेंस। गवर्नमेंट हमारे इंडिया में कितने ग्राम पंचायत हैं, कितने मंडल पंचायत हैं और कितने ज़िला परिषद हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बिल्डिंग ऑन ट्रस्ट। यहाँ पे हमारे पीएम मोदी और मैक्रोन की जो यहाँ पे प्रेसिडेंट जो थे फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन्स की जो 2 दिन की विजिट थी हमारे इंडिया में, ही वॉज द चीफ गेस्ट एट द कंट्रीज 75th रिपब्लिक डे फंक्शन दैट हैज रीइंफोर्स्ड फ्रांस स्पेशल प्लेस इन इंडिया स्ट्रैटेजिक कैलकुलस। सो ये आर्टिकल जो है कुछ क्वाइट सिमिलर टू दिस वन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें चेंजेस हुई। अब यहाँ पे द फ्रांस वॉज द फर्स्ट वेस्टर्न नेशन इंडिया साइंड अ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप विद। ये जो हमारा पहला नेशन था फ्रांस, द फर्स्ट नेशन, फर्स्ट वेस्टर्न नेशन जिसके साथ इंडिया की पार्टनरशिप हुई।
25 years on, जो Emmanuel Macron's visit है comes at a time when ties are stronger with security, civil nuclear matters पे. तो थोड़ी बहुत इसकी बैकग्राउंड को समझना इज़ इम्पॉर्टेंट. हमारा इंडिया फ्रांस के साथ क्या रिलेशन है. देखो कोई भी आर्टिकल जब आपके सामने हो, ये देखो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ें इसमें जाननी इंपॉर्टेंट है. अब ये आपको मैंने हाईलाइट की हुई सारी चीज़ें सो दैट कि आपको इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करनी है. अब देखो यहाँ पे मेजर पिलर्स ऑफ कोऑपरेशन, यहाँ पे आपको इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देखनी है, ठीक है, बिकॉज वो पूछने के चांसेस बहुत कम होते हैं. बीइंग ए स्टूडेंट यू शुड नो कि व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, राइट. मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो वही चीज़ों को करें जो उसकी एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है. एक ओवरव्यू आना इज़ इम्पॉर्टेंट, बट क्या है कि एक स्मार्ट टेक्निक्स फॉलो करना इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. बिकॉज क्या होता है कि जब आप पूरे न्यूज़पेपर की लाइन को पढ़ना रीड करोगे तो ऑब्वियस इट विल टेक मोर देन 2.5 और 3 आवर्स. बच्चे 3 घंटे आप एग्ज़ाम के लिए दे सकते हैं, बट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी एग्ज़ाम. बट अगर आप यूजी एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो मेक श्योर उसमें आपको कट टू कट बातें आपको पता होनी चाहिए कि इसकी क्या कहानी थी, सो दैट कि इफ दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस इट वुड आस्क इन योर एग्ज़ाम यू शुड बी अवेयर अबाउट द थिंग्स कि उसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, राइट. चलो, सो 1998 में यहाँ पे द फ्रेंच प्रेसिडेंट जैक्विन चिराक एक्सप्रेस द आइडिया ऑफ पार्टनरशिप ऑफ 21st सेंचुरी विद इंडिया. उन्होंने एक लाइन कही थी कि लाइक आई केम विद द प्रपोजिशन टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बिटवीन आवर टू कंट्रीज. बात 1998 की है एंड चिराग साहब की सेकेंड विजिट थी वहाँ पे. उसके बाद यहाँ पे 1976 में इंडो फ्रेंच टाइज हुई दैट कैन विटनेस्ड बाय द फैक्ट दैट चिराग अग्रीड टू द चीफ गेस्ट इन 1976. फिर 98 में विजिट करने हमारे कंट्री में आए. दिसंबर 2023 में विथ इंडिया इन्वाइटेड फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन फॉर द रिपब्लिक डे आफ्टर यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन वॉज अनअवेलेबल. सो यहाँ पे 25 ईयर्स की जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है को जानना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैक्रोन विजिट दैट कैप्स द माइलस्टोन ईयर्स ऑफ इंडिया फ्रांस टाइज द 25th एनिवर्सरी ऑफ द स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप. सो इंडिया फ्रांस की जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, द फर्स्ट दैट इंडिया साइन विद एनी वेस्टर्न कंट्री हैज़ बीन कंसिडरेबल प्रोग्रेस इन bilateral, regional and international context. If you talk about defense and security की हम बात करें, defense and security, civil nuclear matters and space constitute principal pillars of this partnership, which now also include the strong Indo-Pacific component. So the comprehensive roadmap between India and France, which was adopted last year in July during Prime Minister Narendra Modi visit as guest of honor and Basel Day, that was classified under 3 pillars: partnership for security, sovereignty, partnership for the planet and partnership for people. तो इन सारी चीज़ों पे हमारी दो कंट्री के बीच में यहाँ पे डिबेट होती है. सो फ्रांस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन इंडिया विद, अगर जो हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें of USS 659.7 million of the financial year 2022 and 23. So, and a cumulative FDI stock of $10.76 billion from April 2000 to September 2023. So, there are over 70 Indian companies complying over 8,000 employees in France. So, let's move to the next one. यहाँ पे चाइना की जो टाइज है साउथ अफ्रीका के साथ, क्या चीज़ें समझनी इसमें इंपॉर्टेंट है. विच कंट्री डिड चाइना मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स वांग विंग विजिट ड्यूरिंग द ट्रिप टू द कॉन्टिनेंट. व्हाट हैज़ बीन द हिस्ट्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन अफ्रीका एंड चाइना एंड व्हाट चाइना फॉरेन पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस. January 13 से 18 Chinese Minister of Foreign Affairs that Wang Yi visited 4 African countries, जिसमें Egypt, Tanzania, Togo and Ivory Coast. This was Wang Yi's 11th annual trip to Africa to enhance economic and security cooperation with the continent. So what was the visit is all about? Wang Yi's visit to Africa that had multiple objectives. The major agenda that was, to implement
the outcomes of the China-Africa Leaders Dialogue that was held in somewhere in August 2023 यहाँ पे हुई थी. So it included the expectations of 3 initiatives. पहला, the support for Africa industrialization, agriculture को modernization की बात हुई, and second thing, cooperation of talent development. जो 9th फोरम है चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन की, जिसको FOCAC भी कहते हैं, ठीक है, ये किस कंट्री के बीच में? दैट फोरम इज फॉर द 9th फोरम ऑफ चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन 2024. सो वाई द अफ्रीका चाइना फर्स्ट ऑफ द पास्ट 34 ईयर्स? क्योंकि यहाँ पे जो ये जो डायलॉग होती है, दैट एमिंग टू कंसोलिडेट चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन अंडर डिप्लोमेसी. उसके बाद इन्वेस्टमेंट की बात होती है, उसमें ट्रेड की बात होती है. सो व्हाट आर द चाइना ऑब्जेक्टिव इन अफ्रीका? फर्स्ट, एक्सेस टू की रिसोर्सेज, बिकॉज अफ्रीका सप्लाई करता है 90% ऑफ द वर्ल्ड्स कोबाल्ट एंड प्लैटिनम. क्योंकि ये डेटा इज इंपॉर्टेंट. ये जो अफ्रीका है आपका, वो सप्लाईज करता 90% ऑफ कोबाल्ट एंड platinum and 75% of coltan that is essential for electronics. So China has the largest refineries in Africa for rare earth and minerals that are vital for its emerging such tech industry. तो गवर्नमेंट अभी भी बात करती है कि लाइक जो ईवी के लिए, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए, उसके लिए यहाँ पे जो अफ्रीका है वो वहाँ पे 90% प्रोडक्शन करता है. मतलब पूरे वर्ल्ड में जितनी प्रोडक्शन होती है 100% का 90% आपको अफ्रीका करता है. सेकेंड, सो द डोमिनेंस इन द माइनिंग सेक्टर हैज़ मेड US डिपेंडेबल ऑन चाइना फॉर की मिनरल्स फ्रॉम अफ्रीका. Second, the African Alliance and its geopolitical aspiration in the UN General Assembly. Africa, the largest bloc and has the power to swing resolution on contentious issue like the South China Sea. What does the visit main aim for Africa? So, यहाँ पे Africa receive investment, trade and development from China in return for natural resources. मतलब Africa अगर natural resources देता है तो in short यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? चाइना करेगा इनके कंट्री में, सो दैट कि यहाँ पे जो यूथ है उनको जॉब मिलने शुरू करे. अभी भी आपको जान के हैरानी होगी, पूरे वर्ल्ड में सबसे लोवेस्ट लिटरेसी रेट अफ्रीकन कंट्रीज की है. डीलिंग विथ AI इफेक्ट ऑन लेबर. यहाँ पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, देखो जितने भी आपके emerging technologies हैं, emerging technologies, उससे we have lots of advantage, but उससे disadvantage भी है. So with extensive commercialization of artificial intelligence and the advent of general purpose generative AI, जिसमें कि आपका chat GPT है, basically it's a open AI chatbot. GPT which means it's a generative pre-trained transformer. So it's a open AI chatbot. So there has been an intense debate on the effect of such automation on labor market. So according to a study of McKinsey, current generative AI and other technology have the potential to automate 60 to 70% of the employees' time, and as per the technology adoption scenario, half of the work activities could be automated by 2045. और मशीन से जब आप देख सकते हो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2045 तक जब मशीन से सारे काम हो जाएंगे, देन इट्स ऑब्वियस दैट कि यहाँ पे इंसान की ज़रूरत बहुत कम होगी, राइट. तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ेगी. सो इस आर्टिकल में जो नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च के हिसाब से जो US में हुई, नंबर ऑफ रिसर्च प्रोवाइड करता है कि 2045 तक हमारे पूरे वर्ल्ड में जॉब की क्राइसिस होंगी, बिकॉज जब मशीन से ही सारा काम होगा तो लोग एम्प्लॉय को हायर नहीं करेंगे, राइट. सो द एग्जांपल्स ऑफ ऑक्यूपेशन इन द IT सर्विसेज इंडस्ट्री विथ इजी टू ऑटोमेट टास्क आर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, राइट. चलो नेक्स्ट वन, ये इंडिया के स्टैंडिंग है.
इन द ग्लोबल इंडाइसिस में. So India has the world highest child wasting rate, 18.7%, reflecting acute undernutrition, and we can say जो global gender gap है, global hunger index है, world press freedom index है, world happiness index है, Henley passport index है, इनमें इंडिया की रैंक जो है वो बहुत कम है. अब मैंने आपसे प्रॉमिस किया था क्विक टिप्स में डिस्कस करना है. परमानेंट मेंबर है यूएनएससी की. इसको लेके फ्रेस, इस वर्ड की कोई मीनिंग नहीं है, बट एफ स्टैंड फॉर फ्रांस, आर रशिया, ए फॉर अमेरिका, सी फॉर चाइना एंड ई फॉर इंग्लैंड. ये सारे कंट्री जो हैं यूएनएससी विच मीन्स यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल्स के परमानेंट मेंबर्स हैं, जिनके पास वीटो पावर्स हैं. ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएन. अब यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज है यूएन की जो है वो है फेसर्स. सो फ्रेंच, अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, रशियन, स्पेनिश. अब ये देखो दिल्ली सल्तनत में जितने भी किंग थे उसको लर्न कैसे करें. स्टडी इन्फॉर्मेशन है. उसके लिए आपको खाना होगा टमाटर. आपको टमाटर खाओ, कैसे? सब खाओ टमाटर, सब लो मज़े. एस स्टैंड फॉर स्लेव, के फॉर खिलजी, टी फॉर तुगलक, एस फॉर सैयद, एल फॉर लोधी एंड एम फॉर मुगल्स. तो सब खाओ टमाटर, सब लो मज़े. ये नेमोनिक्स है एंड दैट काइंड ऑफ नेमोनिक्स इज इंपॉर्टेंट. आपको एक क्रोनोलॉजिकली सीक्वेंस में अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो आपके पास पता होनी चाहिए यहाँ पे कि ये हमारी जो 5 डायनास्टी थी दैट इज़ इंपॉर्टेंट. 1526 में बैटल ऑफ पानीपत होती है, जिसके बाद बाबर यहाँ पे रूल करने आता है. उसके बाद बाबर के बाद फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां एंड द लास्ट वन इज़ औरंगज़ेब. उसकी 1707 में इनकी डेथ होने के बाद मुग़ल एम्पायर कोई भी ऐसा रूलर नहीं था जो कि आगे उसको अपने एम्पायर को एक्सपांड कर सके. स्टूडेंट्स मेरे से पूछी थी नोट्स कैसे बनाने चाहिए विद द हेल्प ऑफ माइंड मैप्स. आप देख सकते हो कि मेरे खुद के नोट्स बने हुए हैं, उसको मैंने जूम करके स्क्रीनशॉट आपके सामने शेयर की हुई है. देखो कभी भी आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे मेंशन करनी हो तो आप ऐसे लिख सकते हो. आर्टिकल 15 देखो डिस्क्रिमिनेशन, 17 अनटचेबिलिटी, 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. सो विद द हेल्प ऑफ माइंड मैप्स you will learn lots of things. Article 124 talking about Supreme Court, 214 High Court, and Article 51A talking about fundamental duties, 343, 351 about Hindi language, Article 24 talking about children below 14 years cannot work. और ये जो 3 आर्टिकल्स हैं आप में 4 को इसमें ऐड करो. सो आर्टिकल 352 टॉकिंग अबाउट नेशनल इमरजेंसी, 356 स्टेट इमरजेंसी एंड आर्टिकल 360 इज फाइनेंस इमरजेंसी. सब में आप 4 को ऐड करो तो यू विल फाइंड आउट कि इसमें 3 इमरजेंसी को आप इमरजेंसी को लर्न कर सकते हो. अब क्वेश्चन ऑफ द डे. अब पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा. एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट इज कंडक्टेड बाय. अब डेजर्ट आप सोचोगे आर्मी की होगी, यही तो ट्रैप है इस क्वेश्चन में, इसलिए आपको ट्रैप को समझना इज इम्पॉर्टेंट. सो माय फ्रेंड एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट जो है वो इंडियन एयरफोर्स का है. यू कैन सी With reference to Ayodhya Ram Temple, consider the following statement. It is constructed in the traditional Nagara style. There are a lot of 7 mandaps, halls in the Ram Temple. No iron is used anywhere in the Ram Temple. तो पहला स्टेटमेंट सही है, थर्ड भी सही है, एक स्टेटमेंट गलत है और आपका बी इज द राइट आंसर. इसमें 5 ही मंडप हैं जिसको नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप कहते हैं. और कहीं भी इसमें नो आयरन इज यूज्ड एनीवेयर इन द टेम्पल. Banjaras during the medieval period of Indian history was generally, ये बंजाराज कौन होते? एग्रीकल्चरिस्ट, वॉरियर्स, वीवर्स एंड ट्रेडर्स. सो बेसिकली in short, the Banjaras during the medieval period of the Indian history that were generally agriculturalists, warriors, weavers and traders. So in that context, you should know about in the medieval history that
note the pay attention on that. The right answer would be here, traders. So there were many different tribal groups in the medieval India. Some were hunter-gatherer nomads. So one such type of nomadic group that was of Banjaras. So there were most important traders, nomads during the medieval periods. Their caravan was called Tanda. Sultan Alauddin Khilji market regulation system that could become successful because mainly the fact that they relied heavily on Banjaras to transport grains. Shekhri and Bhumija. So Shekhri and Bhumija are the terms associated with donation to temples, rock used in the temple construction, mode of temple architectures. Once we had discussed today, because Ram temple in Ayodhya, that was in Nagara style temples, and that Nagara style temples we have discussed Shekhri and Bhumija is the terms associated with the modes of temple architectures. And here it is the last question. Which of the following had first deciphered the edict of Emperor Ashoka? George Bilher, James Prinsep, Max Muller, and William Jones. So the first deciphered the edicts of Emperor Ashoka, the right answer is James Prinsep. So Ashoka, which ruled 269 to 232 BC, he was the son of Bindusar, and his other names was Devan Piya and Piyadasi. He was crowned to the throne of 269 BC and he was famous for the Battle of Kalinga and fought in 261 BC. And James Prinsep was the first to decipher Ashoka edicts inscription in 1837. So my friend, this is all about the session and I hope that you enjoyed a session a lot. If you have any questions regarding this, please let me know in the comment section, and make sure, like, if anything you would like to ask, please let me know. Make sure if you are new in this channel, please subscribe our channel and do not forget to press the bell icon so you will get the notification of all Pratham Test Prep mentors. Stay tuned. We'll meet you tomorrow for the same time. Till then, bye-bye and take care. Thank you so much for joining with us.